Okay, so well, student, today's our topic is adjustment of capital in reconstitution of partnership form. So far we had studied about how to calculate the sacrificing ratio, gaining ratio, new ratio. Then after we have studied about the how many methods are there to evaluate the goodwill at the time of change in profit sharing ratio, and different methods we had studied, and also we have solved so many questions of goodwill. And then after we had studied how to make the accounting treatment of new goodwill at the time of change in profit sharing ratio, as you know that in gaining and sacrificing ratio. Then after we had studied accounting treatment of the accumulated profit, loss, reserve and fictitious assets in old ratio, in gaining and sacrificing ratio. Both condition I have taught you all people. Okay. Now after that we had studied revaluation account. So how to prepare revaluation account and how to pass the journal entry, how to pass the closing entry for the revaluation. Okay, there are two ways when the partners want to show the revised value in the books. So in that case, we distribute the profit or loss of the revaluation in old ratio between all old partners or existing partners, right? But when partners do not want to show the revised value, in that case, we record the effect of revaluation account in gaining and sacrificing ratio, because we are not going to show the new value or revised value or altered values in the balance sheet. So, okay, and now today we have to study adjustment of capital. Adjustment of capital means what here? Suppose that after distribution of all these things at the time of change in profit sharing ratio, if partners want to maintain their capital in the particular proportion, okay, so in that case they will compare their capitals if their capital is in the same proportion or not, as in the question it is saying. If it is less, agar unka capital kam hai, so they will bring from home. Okay, और अगर उनका कैपिटल ज्यादा है, if they having the more capital, ठीक है, as per the agreement, so वो क्या करेंगे, withdraw कर लेंगे in cash. But there are two methods of adjustment of capital. First method ki they will bring cash or withdraw cash in case of excess or deficit or excess of capital. बट दूसरा मेथड है कि वो घर से पैसा ना तो लाएंगे ना तो ले जाएंगे, जो भी एक्सेस और डिफिसिट होगा उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके एडजस्ट करेंगे, मींस बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट. सो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसमें सर बोल रहा है दे डिसाइडेड दैट पार्टनर्स कैपिटल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नथिंग एल्स. It means in this question we have to adjust capital by bringing in or withdrawing cash. But in second question 33, you will see here it is saying capital, third point, capital of the partners will be in proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose current accounts will be opened, right? So यहाँ cash से adjust नहीं करना है, यहाँ current account से adjust करना है. सो स्टूडेंट पहले आज हम लोग तुम्हें 33 वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली ऑफ द क्वेश्चन नंबर 33 and 32 both. First we are going to solve 33 question because it's a lengthy. Okay, and this type of question two times continually consecutive 2 years in board exam has been asked, so that's why we focus on this topic then after first. Okay, so take this screenshot. Is there any confusion? You can raise your queries in the chat box. Okay, so students, you all are ready? Show your symbols. Emojis आप दिखाइए भाई, आप लोग रेडी हो? Okay students.
wait. Okay, so let me start. The question number 33, I am going to start. So here, just I am reading this question. You compare it. And this question it is saying A, B, and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Right? So इनका old ratio 3:1 है. कह रहे on March 31st, 2019, their balance sheet was as follows. What was the balance sheet? See, liability side, it is showing capital of A, B, C, 50,000, 40,000, and 30,000 respectively. Then reserve fund is given 18,000. Creditors 27,000. Employees provident fund 50,000. So आपको ध्यान रखना है इस liability side में सिर्फ reserve fund एक ऐसा है जो partners capital में distribute होगा at the time of change in profit sharing ratio. In an asset side, fixed assets and current assets is given. No fictitious assets are showing here. Okay. Now, further, below the balance sheet, you will see they have decided from 1st April, from April 1st, 2019, they decided to share profits, future profits equally. Means earlier क्या था 3:1 था, but अब क्या हो गया 1:1:1. For this purpose, the followings were agreed upon. First point, goodwill of the firm was valued at ₹3 lakh. This is what? New goodwill. So we record it in gaining and sacrificing ratio, right? Second, fixed assets will be depreciated by 10%. This is a loss because our asset is depreciating. So it will be shown in revaluation. Okay, we do pass the entry for the revaluation. Then after it is saying capital of partners will be in proportion to their new profit sharing ratio. So इनका जो capital होगा capital account में इनके new profit sharing ratio में होगा. और capital account कैसे बनाते हैं fundamental में आप लोग पढ़े हो. For this purpose, current accounts will be opened. So for adjustment के लिए क्या करना है यहाँ current account open करना है. So आपको करना है क्या mainly कह रहा है last में pass general entries for the above transaction in the books of the firm. सब general entry के लिए बोल रहा है capital account के लिए नहीं बोल रहा है. But I will teach you today general entry as well as capital account so that you can understood in a better way. Okay, students. So I am going to start. I'm going to stop the share also. Yes. So now see here in the question I have made here general entry. Already you all are knowing how to pass the general entry, students. So is there any query you can put in your chat box? Otherwise I'll be asking. So first कह रहा है कि इसमें आपको जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कहा है कि they don't want to show the revised value or they don't want to distribute the reserve, ऐसा कुछ नहीं बोला है. It means we will distribute the reserve, we will show the profit or loss on revaluation in the old ratio and at all. So आप देखिए सबसे पहले liability side में हम लोग start करेंगे, किसी भी साइड से कर सकते हैं, बट एक सीक्वेंस याद रखो कि सबसे पहले हम accumulated profit loss reserve एंड फिक्टिशियस एसेट्स में से कुछ भी दिखा पहले उसका रिकॉर्ड कर लो. तो पूरा बैलेंस शीट को देखने के बाद हमें ये पता चला कि सिर्फ लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है. ओके, रिजर्व इज गिवन. तो रिजर्व क्या होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड आइटम है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देंगे इस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में, राइट. सो देखिए डेट क्या होगा 2019 अप्रैल 1st बिकॉज दे आर चेंजिंग their profit sharing ratio on 1st April. So 1st April को सारी एंट्री होगी. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल. ओके, रिजर्व कितना है 18,000. तो 18,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आपके पास पेन पेपर है, यू कैन कैलकुलेट इट. 3:2:1 मींस 3/6, 2/6 और 1/6. तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा. 18,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3000 आएगा. और फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 9,000. 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो 6,000 और 1 में 3,000. राइट, पहला एंट्री आपको समझ में आ गया होगा ओल्ड रेशियो में.
सेकेंड एंट्री कह रहे क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. So you will see in the question in asset side the total value of the fixed assets are given 1,80,000, right? And we have to depreciate how much? 10%. Okay, so 10% of 1,80,000 will be 18,000 and it's a loss because it is decreasing the value of assets. So loss के केस में क्या करते हैं? Revaluation is a nominal account, so revaluation account debit to fixed assets by how much? 18,000. Okay, but when you will see in the question thoroughly, there is nothing else except the depreciation on the assets. So revaluation account is over, just we have to close it. So how to close? Here it is a loss, so loss to be written up between the partners. So loss यानी डेबिट बैलेंस है, so इसको revaluation को क्रेडिट करेंगे और सभी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, all old partners, right? A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit, and to revaluation. Revaluation कितना? 18 था, 18 लिख दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3000, 6000, 3000. क्यों ऐसा हमने डायरेक्टली बता दिया? क्योंकि ऊपर भी 18 को इसी रेशियो में बांटा गया था, तो 18 यहाँ पर भी है तो अमाउंट तो सेम ही आएगा. You can check it. Okay, students. Now 2 points is over. Third point is saying that the goodwill of the value, goodwill of the firm was valued at is how much? Goodwill of the firm was valued at 3 lakhs. Okay, so when you will see the goodwill of the firm is 3 lakhs, so you all are knowing that the goodwill always to be recorded in the gaining and sacrificing ratio. Students, तो gaining and sacrificing ratio में कैसे करते हैं? पहले आपको क्या करना होगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होगा. ओके, सो आप देखो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आप देखिए. यस, सो आप देखो यहाँ पे, एक मिनट. सो आपके पास पता है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. ओके, तो ये है आपके पार्टनर्स. अब उसमें है क्या कि ओल्ड रेशियो का क्या है? 3/6 और न्यू क्या है? इक्वली मींस 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है. 3/6 माइनस 1/3 हमने सॉल्व किया तो आ रहा है 1/6 सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है. ठीक, इस तरह बी का मैंने सॉल्व किया, सो बी का ओल्ड क्या था? 2/6 और न्यू क्या है? 1/3 है, राइट? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 - 2 यानी कि 0 आ रहा है, nil is not sacrificing nor gaining. And now C का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/6 और न्यू क्या है? 1/3, राइट? सो सॉल्व किया हमने यहाँ पर, सो 1 - 2 मींस इक्वल टू -1/6, तो ही इज गेनिंग क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, राइट? सो अब गेनिंग ये आ गया. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे? आप लोग को पता है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो. अब आप देखो कि यहाँ पर आपको पता है कि C is gaining, it means C will compensate. See here at the top, C will compensate to A. How much? जितना वो गेन कर रहा है 1/6. किसका? न्यू गुडविल. न्यू गुडविल कितना है? 3 lakhs. ओके, तो 1/6 का 3 लाख तो कितना आ रहा है? 50,000. ओके, सो 50,000 से क्या होगा? C का कैपिटल डेबिट हो जाएगा. यू सी here in the journal entry, C's capital account debit to A's capital. Okay, C's capital account debit to A's capital because C is the gaining partner. Okay, C is gaining partner, तो C क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और A क्रेडिट हो गया. सो यहाँ तक तो जनरल एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप. अब इसके बाद मुझे एडजस्टमेंट करना है. So first of all, you see if there any confusion, you can arise a question. Then after I will move forward. So see here, before going to on capital account, just I want to show you here. This is a capital account. Okay, partners capital already you all are knowing in the very first chapter of the partnership you had studied. So सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बिडी, और बाकी उसके बाद सारे चीज लिखते हैं. तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ. मैंने क्रॉस किया हुआ है ऐसे, और ऊपर आप देखो बैलेंस शीट बना हुआ है. ये बैलेंस शीट है. तो जब भी कभी प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन, रिटायरमेंट एंड व्हाटएवर, सो अगर बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया है और आपसे कहा जा रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो आप ध्यान रखो कि पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें लायबिलिटी में होंगी वो इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट में.
ये क्रेडिट साइड आता है होता है, और एसेट से रिलेटेड क्या हो जाएगा, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जनरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इधर होता है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा, और रिजर्व क्रेडिट होता है मतलब लायबिलिटी, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसकी जनरल एंट्री भी आप देख सकते हो, ये भी आपने किया है। सी हियर, सबसे पहली एंट्री मैंने किसकी किया है यहाँ पे, रिजर्व की। रिजर्व कहाँ होता है, लायबिलिटी में होता है, ठीक। तो लायबिलिटी का मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जा रहा है ना। तो अगर हम लेजर बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं आप, कि अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व, लिखेंगे ना बाय रिजर्व यहाँ पे, राइट। सो अब आप खुद से समझो कि बाय रिजर्व यहाँ लिखेंगे और ओल्ड रेशियो बांटेंगे, तो वही चीज है यहाँ पर ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सिस कैपिटल, कैपिटल को क्या किया गया, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री तो आपको समझ में आ जाएगा, और डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो विदाउट पासिंग द जनरल एंट्री। याद रखो, लायबिलिटी वाला आइटम इधर और एसेट्स वाला आइटम इधर आता है, चाहे ओपनिंग कैपिटल ही क्यों ना हो पार्टनर्स का, वो भी इधर है तो इधर आएगा और इधर है तो इस साइड आएगा, ठीक है। सो ये तो रहा आपका कैपिटल का एक शॉर्टकट कि हम डायरेक्टली बिना जनरल एंट्री के कैसे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाना है और एडजस्टमेंट भी करना है। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू रेज दिस एंड प्रिपेयर you also along with me, because after that we have to pass the journal entry. फटाफट आप लोग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कैपिटल अकाउंट, ओके। सी ये देयर आर हाउ मेनी पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, ओके। सो 1 2 and 3, 1 2 and 3. So partner A, partner B, partner C, okay. Particulars फटाफट फॉर्मेट आप लोग बना लो उससे, it will help you. ये हो गया कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, हेडिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो आपके पास स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन का, आप देखो लायबिलिटी साइड में ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, 40,000 एंड 30,000। सो लायबिलिटी में है तो इस साइड आ जाएगा। सो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को ऑलवेज बैलेंस बीडी लिखते हैं। 50,000 और 40,000 एंड 30,000, ये आपका कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा लायबिलिटी साइड में। अब इसके बाद क्या दिया है, रिजर्व। सो रिजर्व बांटना है तो चाहे जनरल एंट्री की हेल्प से बांटो या डायरेक्टली देखकर बांट लो। तो रिजर्व इधर ही आएगा, रिजर्व्स। सो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 9,000 आपने ए को दिया है, 6,000 आपने बी को दिया है और 3,000 सी को दिया है, राइट। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि जनरल एंट्री में देखो आप रीवैल्यूएशन की एंट्री की है, यहाँ पर कहीं कैपिटल है नहीं है, लेकिन यहाँ रिवॉल्यूशन का लॉस जो हुआ वहां पर कैपिटल है, डेबिट है। तो डेबिट है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे रिवॉल्यूशन के लॉस को, ठीक है। तो डेबिट साइड में इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस आया है तो लॉस होने पे कैपिटल को डेबिट करते हैं ना, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन को। तो कितना, सेम अमाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000, क्योंकि लॉस आपका 18,000 का ही है, ठीक है। सो हमने 9,000, 6,000, 3,000 लिख दिया। अब क्या करना है, आपने क्या किया, आप देखो एक लास्ट एंट्री किया है आपने यहाँ पर गुडविल की, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। सो आप देखो यहाँ पर कि जो न्यू गुडविल का रिकॉर्ड किया है इसमें किसका कैपिटल क्रेडिट है, किसका डेबिट है, तो ए का क्रेडिट है। सो ए के कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड है आपका राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है, राइट। सो क्रेडिट साइड में ए का क्रेडिट है तो ए के कैपिटल में लिखेंगे 50,000 जिसका कैपिटल क्रेडिट है, ठीक है, और किसी का कुछ नहीं है। सो ये कहां से आया, तो ये सी से आया, तो यहां लिखेंगे सीज कैपिटल, ठीक है। अब आप देखो सी का कैपिटल डेबिट है, सो डेबिट किधर लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टू एस कैपिटल, क्योंकि सी का कैपिटल डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ए की वजह से, ए को उसको देना पड़ा,
तो सी में लिखेंगे 50,000। अब हमारे ख्याल से लगभग सारा आपका हो गया। देखो आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में रिजर्व को बांट दिया और न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। आपको करना क्या है, अब बैलेंस फाइंड करना है। पहले सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस फाइंड करेंगे। सो बैलेंस फाइंड करने के लिए जैसे आप लोग लेजर बनाते हो ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है कि लेजर सबका कंबाइंड बना हुआ है। यहाँ सिर्फ अकेले ए का, बी का, सी का नहीं बन रहा है, यहाँ तीनों का कंबाइंड लेजर बन रहा है। लेकिन जब बैलेंस करेंगे तो एक एक का करके करेंगे। सो देखो सबसे पहले ज्यादा किधर का है। सो ए का, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए का ज्यादा है 1,09,000, 1,09,000 राइट। सो इधर 9,000 सिर्फ है। सो हम लोग 1,09,000 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्योंकि अब ये क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बिटवीन द टू बैलेंस सीडी कितना आएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपया आ गया। अब बी का हम लोग चेक करें तो बी का देखो 40,000 प्लस 6 46 और इधर कितना है सिर्फ 6,000 है। सो यहाँ 46 जो ज्यादा है वो लिखेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब इसका बैलेंस कितना आएगा 40,000। सो 46 में से 6,000 माइनस कर दिया, 40,000 आ गया। अब हम लोग सी का देख रहे हैं। तो सी का इधर 30 और 3 33 है और इधर 50 और 3 है 53,000। तो डेबिट ज्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पे इधर ऐसे डैश करके यहाँ 53 लिखेंगे, यही 53 हम लोग इधर भी लिखेंगे। अब इधर बैलेंस निकालेंगे इसका। सो बाई बैलेंस सीडी। सो बैलेंस सीडी में कितना आएगा 53 में से 33 माइनस कर दो 20,000। तो इससे ये पता चला कि कैपिटल अकाउंट जो है वो ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है और सी का डेबिट बैलेंस है। तो क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एडजस्टमेंट करने को। तो जब भी कभी एडजस्टमेंट करने के लिए कहता है तो जो भी हम ये बैलेंस फाइनल वाला फाइंड करते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इधर वाला बैलेंस इधर आएगा और इधर वाला बैलेंस इधर आएगा। अगर तीनों का बैलेंस इधर आता तो सारा इधर होता। तो हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। सो ए का है 1 लाख, ठीक है 1 लाख है, और बी का है 40,000 और सी का इधर आएगा क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो सी का डेबिट बैलेंस है। आप देखो मैं यहां लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है, सो अब हमें एडजस्टमेंट क्या करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबका कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। जो फर्म का कैपिटल है इट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे अब होगा। सो पहले देखिए कि सबका कैपिटल है कितना। सो आई होप कि दिस साइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग यहां देखो, दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये साइड आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पे। सो आप ए का कैपिटल देखो कितना है फाइनल 1 लाख, ठीक है। बी का कैपिटल कितना है 40,000 फाइनल वाला, और सी का कैपिटल माइनस में आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं है, डेबिट माइनस होता है। सो 140 माइनस 20 तो कितना आ रहा है सबका कैपिटल 1,20,000 राइट। अब ये सबका कैपिटल देखो आप लोग 1,20,000 आ रहा है, ठीक है। अब इस 1,20,000 को करना क्या है हमें स्टूडेंट्स, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, ठीक है। So we have to make it in their new profit sharing ratio. So how it is to be solved? So see here. So what is the new ratio? Equally. So their new ratio is equally. So यहाँ पर हम लिखेंगे 1,20,000 जो एक का कैपिटल आएगा वो सभी का आएगा। तो 1/3 है, इक्वल का मतलब इक्वल मीन्स ऑल कैपिटल इज प्रोपोर्शन इज सेम। सो 1/3 अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 40,000, यानी सबका कैपिटल कितना होना चाहिए 40,000 ईच, राइट। सो अब हम करेंगे क्या, जो बैलेंस होना चाहिए फाइनल, ऑलवेज फाइनल बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। लेकिन ये बैलेंस सीडी जो लिखेंगे ऊपर से एक लाइन छोड़ करके, गैप छोड़ करके, ठीक है। तो कितना लिखेंगे सबका कैपिटल, जैसा कि हमने भी कैलकुलेट किया 40,000 आ रहा है उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में, 40,000 और 40,000। ओके, अब हम लोग को बोला क्या है कि कैश से नहीं एडजस्ट करना है, करेंट अकाउंट से।
सो आप देखो कि 40,000 तो हमने बैलेंस लिख तो दिया, लेकिन क्या ये बैलेंस आ रहा है? तो कैसे पता चलेगा बैलेंस आ रहा है कि नहीं? तो अब आप देखो यहाँ पर बहुत इजिली कि इसका इधर 40 है और यहाँ कितना है, 1 लाख रुपया है। सो ज्यादा है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया लिख लिया, वही 1 लाख रुपया हम यहाँ लिखेंगे। मतलब क्या है, अब समझो, इसका होना चाहिए 40,000 और है कितना, 1 लाख, तो इसका ज्यादा है तो ये विड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ कैश में नहीं विड्रॉ कर रहा है, करेंट अकाउंट ओपन करना है। सो 60,000 हम इधर लिख देंगे तो 1 लाख हो जाएगा, लेकिन किस नाम से लिखेंगे, क्वेश्चन बोला है करेंट अकाउंट, सो करेंट लिखेंगे, करेंट अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ करेंट अकाउंट लिख देंगे। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स करेंट अकाउंट हमने लिख दिया, ठीक है, 60,000। ठीक इसी तरह आप बी का हम चेक करेंगे। सो बी का देखो 40,000 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो उसका कोई चेंज नहीं, उसका कैपिटल एज इट इज है, ठीक है, ना तो वो सेक्रीफाइस किया है ना तो वो गेन किया है, क्लियर, उसका कैपिटल ठीक है। अब आते हैं सी का, तो सी का कैपिटल डेबिट में 60,000 आ रहा है, ठीक है, तो 60 यहाँ भी लिखेंगे और इनका करंट इधर आएगा, क्यों, क्योंकि इनके पास तो कैपिटल डेबिट पहले से था और 40,000 बैलेंस, तो ये घर से कितना लाना था इनको, 60,000, ताकि डेबिट माइनस होता और 40 बचता, लेकिन यहाँ पैसा लाना नहीं है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, सो हम लोग यहाँ 60,000 लिख दिए। अब हमारा एडजस्टमेंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, जब ये एडजस्टमेंट हो गया तो अब इसके लिए जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री में क्या करेंगे कि देखिए आप लोग, जिसका कैपिटल क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना है कैपिटल, और करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना, उल्टा एंट्री करनी है। सो पहले आप लोग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये पूरा बन गया, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट हो गया, आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा कर लो। अब हम इसका जनरल एंट्री पास करेंगे, वहां पे स्पेस नहीं है, तो जनरल एंट्री हम यहाँ ऊपर पास कर दे रहे हैं। आई होप कि ये दिखेगा भी, मैं शो कर देता हूँ उसको प्रॉपर वे में, या इधर ही कर देता हूँ, इधर आपको तो अच्छे से विजिबल है, ठीक है। सो अब देखो इस साइड में जनरल एंट्री पास करने जा रहा हूँ, जनरल एंट्री इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें क्या है, आपका सिंपल सा चीज देखना है कि करेंट अकाउंट में आपने 2 लिखा है, तो किसका किसका, ए और बी का, तो ए और बी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, तो करेंट अकाउंट ए और बी में डेबिट साइड में आप लिखे होगे, आप ध्यान रखोगे, जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं सिर्फ वही है, ठीक है। और 60,000, अच्छा बी का तो कुछ है ही नहीं है, बी का तो कुछ है ही नहीं, टू इज करेंट अकाउंट। देखो एक एंट्री हो गई, एक एंट्री हो गई हमारी एज कैपिटल, क्योंकि देखो ये कैपिटल डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में एक कहाँ लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे हैं, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं ना डेबिट साइड में, इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया और 2 करेंट को क्रेडिट कर दिया गया, सिंपल सा है। ठीक इसी तरह सी का करेंगे, तो सी का क्या है, बाई करेंट है, यानी कैपिटल अकाउंट के किस साइड लिखा गया है, क्रेडिट में, तो सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सीज current account debit to is capital account, कितना, 60,000, ओके। सो आप देख लो यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा आई होप, ये है आपका ए और बी सी का जो जनरल एंट्री एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें ए का कैपिटल डेबिट और करेंट अकाउंट क्रेडिट 60,000 से, और सी का करेंट अकाउंट डेबिट और सी का ही कैपिटल होगा, सॉरी मैं ए लिख दिया हूँ, nobody has C is करेंट कैपिटल, सॉरी यस, तो जिसका करेंट है उसी का कैपिटल है, ठीक है। सो सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, इस बैलेंस जो मैंने अकाउंट बनाया उस अकाउंट को आप देख लो अच्छे से, और अकाउंट के आधार पे ही है, यहाँ पे सी का क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड है तो सी का कैपिटल क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, और करंट अकाउंट बाई है तो बाई वाला डेबिट में चला गया, और यहाँ पर हमने 2 करंट लिखा था और ए का डेबिट था तो ए का कैपिटल मैंने वहां डेबिट कर दिया, और
फिर करेंट अकाउंट को क्रिएट कर दिया. सो आई होप कि you all have understood this, and after that you have to solve yourself